Hi everyone, welcome back to the channel. So with RBI Grade B notification dates being confirmed as 18th July and tentative dates for phase 1 being 8th September and phase 2 being 20th October, we don't have much time on our hands. So this video is first of all only for serious aspirants, those who have that passion and intent that yes, they want to become RBI Grade B officers. If you are just here for testing purpose, I would say leave it at least for this year. It's not about selection, but it's about the serious intent. So the 70-day study plan that I'm going to discuss with you is actually going to help you distribute your preparation between phase 1 and phase 2. Don't make that mistake that everything has to be covered within first 70 days. You have to distribute your preparation. You would still have another 40 days between phase 1 and phase 2, that is 8th September to 20th of October. So this is one point we will learn. Then we will see that what are the important areas that you need to focus on, strategize, and what are the sources that you need to learn to complete your focus area. So this is all about that we are going to discuss. और ये सिर्फ serious aspirants के लिए है. If you ask me, sir, can RBI be done right now if I start my preparation? मैं बोलूँगा भैया start कर दो, वही सबसे बड़ी जीत है. स्टार्ट करते करते आप ये 2 महीने भी निकाल देंगे एंड यू विल इवेंचुअली बी आस्किंग द सेम क्वेश्चन फॉर द 2025. सो सीरियस एस्पिरेंट विल नॉट थिंक शॉर्ट टर्म कि भैया इस साल होगा नहीं होगा. ही विल और शी विल थिंक लॉन्ग टर्म दैट आई हैव टू प्रिपेयर, लेट मी स्टार्ट एंड लेट मी सी if I can clear this year, good, otherwise I'll give my next best shot next year. So this is the plan. First of all, this is not that kind of plan which everybody should follow. I know many of you would be at different stages of your preparation. किसी ने quant कर लिया होगा, किसी ने management कर लिया होगा. So you need to customize this. I am just giving an overall idea as in how can you have a final nail in the coffin अगर आप इन components को इस तरह से पढ़कर close करते जाओ कि उसके बाद उसको हाथ नहीं लगाना है. This is finalized from my side. So this plan also considers that we will be doing phase 1 and phase 2 simultaneously, because if you concentrate only on phase 1 till 8th of September, thinking that you will do phase 2 after 8th of September, you are just aiming phase 1, you will never clear phase 2. So ये एक बहुत ही parallel kind of plan है for phase 1 and phase 2, and we are dealing in blocks, 15 days block, where we are trying to do max 2 things. We are not trying to cover everything at one go, because then what happens is that you become too much busy in doing all those things and your productivity almost becomes zero. तो 1st to 15 July we shall be focusing on reasoning and descriptive English. मैं बहुत ही crisply सारे components को आपको एक idea दूंगा. I will be giving you the direction. If you can implement that, start implementing it. If you have any doubts, do ask us. Reasoning में the first thing that you need to understand, your phase 1 is qualifying and so is reasoning. The cutoffs in reasoning are kind of 9 to 10 marks, what is happening over last 2-3 years, but the paper is really tough. So taking into account that the paper is really tough and the cutoffs are around 9 to 10 marks out of 60 questions, you should not be targeting that you would be solving 40 questions in the exam and therefore you shall be preparing all the topics before the exam. 10 is the cutoff, say maximum it can go to 15 even if the paper comes easy. That has been the trend over years. आप limited topics पे focus करो, but whatever you do it well. And when I say limited topics, I would first say कि आप puzzles के अलावा जो topics हैं, जैसे कि blood relation, syllogism and reverse syllogism, input output, coding decoding, ranking, direction sense, inequality, statement and assumption, cause and effect, and other non-verbal reasoning topics. You give focus to these areas because these are not that lengthy questions. Even if you pick one question you are not able to solve, that's okay. You can move on to the next question. But if you start solving puzzles and you are not able to solve a puzzle within say first 10-15 minutes, how much ever intelligent you may be, you are stuck. So prefer miscellaneous topics over puzzles. ऐसा नहीं है puzzles आएंगे नहीं. Out of 60 you will get around 30 marks worth of puzzles in your paper at least. But I think the best scenario is to solve 10-12 questions out of another 30 questions and clear your cutoff. बाकी puzzles आप पढ़ सकते हैं.
एक बार ये टॉपिक्स को कर लो, then you can go to puzzles. Even if in your exam you're done with all these questions, you can move to puzzles. And do focus on the sectional test. Exam is just not about knowledge. I've seen people who are intelligent who can solve any question in any day, but in the exam, these wonder boys and girls are not actually able to give their best. They just panic. They have a lot of anxiety. So give a lot of sectional tests. It's more about selecting the right questions and moving on if you're not able to solve. And no, being not egoist के क्वेश्चन पकड़ लिया तो करना ही करना है. तो ये चीजें आप सब सेक्शनल टेस्ट से सीखेंगे. टाइम कैसे मैनेज करना है, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है. सो गिव लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट इवन बिफोर यू मूव ऑन टू फुल लेंथ मॉक टेस्ट. एंड दिस इज अ गुड बुक फॉर रीजनिंग. R.S. Agarwal, this will help you set the basics, but the advanced level questions, the new type of questions that are coming in the exam, you should be able to solve only through quality sectional test. Then about descriptive English, you might wonder that, sir, why are you starting descriptive English right now? Very well said question. Descriptive English, 100 marks, hardly takes 20 hours to prepare, but nobody prepares it. They leave it till the end, कि phase 1 के बाद करेंगे. And then there is a lot of pressure. You will read 200 marks, 200 hours for FM, which is 100 marks, and you cannot read 100 hours, 20 hours for English, which is worth 100 marks. That is gross injustice. I would say rather do descriptive English, gain that confidence that I have at least covered some part of phase 2. और descriptive English में करना क्या है? Just learn the rules of solving essay, pressing, and comprehension. Watch some quality videos, watch them 10 times, 15 times. They should be inherent in your mind, what needs to be done. And start reading editorials. Hindu newspaper is very good for reading editorials related to social issues, and Lime Mint for reading editorials related to financial topics. And then start typing editorials in your own words, either in a form of an essay or précis, in Notepad. Do not write it in WordPad. And evaluate your errors. And how to evaluate your errors? Whatever you type, you go to any website. Right now, one example is Grammarly.com. You go to this website, you paste your content here, it will do free evaluation for you. Spelling mistakes, punctuation mistakes, grammar mistakes, everything would be shown to you. So just do it, just analyze it, watch it consciously and improve upon your errors. Moreover, this exercise can help you improve your typing speed and structure also. And by reading editorials, this content will also be useful in your ESI and FM descriptive paper. Now from 15th to 13th of July, again I am just giving you two components which are easily doable. English, आप नहीं करना चाहते, so you can use this time in quant or in finance, this slot. That depends upon you, because this 15 July to 15th of August बहुत ज़्यादा इसमें hodgepodge होने वाला है, because you would have to cover a lot of things. So if you're good in English, just leave it and use this slot either for quant or finance. But अगर English करनी है, I will not suggest you to read grammar. Reverse engineering karo, solve a lot of mock tests, just get an idea what kind of questions are coming and try to maximize your score by knowing कि किस तरह के questions मुझे select करने हैं. और बहुत सारे sectional tests दीजिए. And this is a good book for English, Objective Journal English by SP Bakshi. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी किताब है. और अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप सबसे ज्यादा स्कोर्स कर सकते हैं, वो है एफएम. अब हम एफएम इज फाइनेंस, एम इज मैनेजमेंट. एफएम में आई वांट यू टू टारगेट 75, एटलीस्ट 75 प्लस. और अगर आपको एफएम में 75 लेने हैं, मैनेजमेंट में आउट ऑफ 50 यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट 40 to 45. तभी जाके मैनेजमेंट में 75 मार्क्स आएंगे. And this is possible because if you see, management has a very limited syllabus because it does not have any current affairs. This syllabus is also very generic. Finance में आप time value of money, derivatives, bonds पढ़ेंगे तो पहली बार पढ़ने में मुश्किल लगेगा. But here topics like motivation, leadership, communication, conflict, all are doable in very less time. It's about very general concepts which are being framed in a framework. और जब भी मैनेजमेंट पढ़ें, आंसर राइटिंग जरूर करें साथ में, बाद में नहीं होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं. लॉट ऑफ योर लक, लॉट ऑफ योर chances of selection depend upon your answer writing skills, and please develop them side by side. The only problem in management that you will face is that it's a theoretical subject. So at times it might takes you a lot of revisions to actually inherit the things which author is saying.
और मैनेजमेंट को रिटेन करने के लिए और उसको समझने के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज करने बहुत ज़रूरी हैं. प्लीज़ डू नॉट जस्ट रेस्ट ऑन द थ्योरी, डू लॉट ऑफ एमसीक्यूज. एंड दीज आर द गुड बुक्स फॉर मैनेजमेंट. अगर मैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं एल.एम. प्रसाद की, ये बुक से आपके काफ़ी चैप्टर्स हो जाएंगे. फिर ओबी के भी कुछ टॉपिक्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज विच कैन बी डन फ्रॉम एल.एम. प्रसाद. अगेन बोथ दीज बुक्स आर डिफरेंट दो बाय द सेम ऑथर. कुछ ओवरलैप है, वो आप एक बुक में से कर लीजिएगा. देन फॉर बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बी.एन. घोष है. बाकी थोड़ा बहुत नेट से पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चंस आर वेरी जेनरिक जो आपके एग्जाम में आते हैं. इन द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव में कभी कभार कुछ घुस के पूछ लेते हैं जो इस बुक से तो नहीं होगा, फिर उसके लिए आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वांट हेयर. ठीक है, फ्रॉम 1 अगस्त टू 15 अगस्त हम क्वांट पे मूव करेंगे. यहां पे भी इफ यू सी in your exam you are given 30 questions in 25 minutes and the cutoff is hardly 3 to 4 because पेपर बहुत टफ आ रहा है. 25 मिनट में आप 10 क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते हो आउट ऑफ योर रेंज. 3 से 4 क्वेश्चन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 टारगेट कर लो. एंड अगेन इफ यू वांट टू टारगेट 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज डू लिमिटेड सिलेबस बट डू इट वेल. टाइम एंड वर्क कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लो. टाइम एंड वर्क में कम से कम 15-20 टाइप हैं. डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन कर लो. एटलीस्ट 200 से 250 क्वेश्चन पर टॉपिक प्रैक्टिस कर लो. तो सारे टॉपिक मत करो, एटलीस्ट लिमिटेड टॉपिक्स करो बट अच्छे से करो. और ये टॉपिक आप कर सकते हैं विच इन जर्नल आई सजेस्ट टू एवरीबॉडी. अदरवाइज यू कैन गो विद योर स्ट्रेंथ्स. टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. सिंपल वाली, अरिथमेटिक वाली मत करना, वो बॉडी टफ हो जाएगी. टाइम है तो कर लीजिएगा. ठीक है, ये चैप्टर्स पे फोकस कीजिए. और ये अच्छी बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर अरुण शर्मा फॉर कैट. लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स फ्रॉम कैट एग्जाम्स यूज इट बट दिस इज गुड इवन फॉर आरबीआई ग्रेड बी. देन मूविंग ऑन टू फाइनेंस. यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डर लगता है. ऑल आई वांट टू से यू इज दैट आप पिछले साल की हिस्ट्री निकाल के देखिए, उससे पिछले साल की निकाल के देखिए. लॉट ऑफ पीपल who are from engineering background, not from finance or banking background, they have been able to clear this exam just with their sheer determination. सबसे पहले ये मुश्किल नहीं है. थोड़ा बहुत जो मुश्किल है वो आप कर सकते हैं. You just need to believe in yourself. फाइनेंस के लिए अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस इज द मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड करंट. अराउंड से ये 50 मार्क्स का आएगा बिकॉज बाकी 50 मार्क्स का तो मैनेजमेंट आएगा. आपको ओवरऑल पेपर एफएम है 100 मार्क्स का. इसमें स्टैटिक और करंट का मिक्स आएगा. 60-40 लगा लो, 65-35 लगा लो. ऑब्जेक्टिव इस 50 में से 25 मार्क का आएगा जिसमें से स्टैटिक 17 से 18 मार्क्स का आएगा. स्टैटिक का ऑब्जेक्टिव में अच्छा वेटेज है एंड द सिलेबस इज वास्ट बट what I have analyzed is that most of the questions in the static part in the objective will come from these chapters. तो ये chapters बहुत अच्छे से कर लेना भाई. ठीक है, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, you just pause this video. न्यूमेरिकल्स को लो प्रायोरिटी पे लेना. ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछते नहीं है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम. हाँ, इन चैप्टर्स में थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेना. कैश फ्लो रेशियोज, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बेसिक ही तैयार करो. अभी तक तो एडवांस पूछे नहीं है, पूछ लेंगे तो फिर अगले साल से तैयारी कर लेना. अभी टाइम वेस्ट मत करना इस पे. बाकी जो करंट अफेयर्स हैं ऑब्जेक्टिव में, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज आरबीआई नोटिफिकेशंस. जो आरबीआई की वेबसाइट पे आरबीआई की रेगुलेशंस आती हैं. दूसरा एरिया है इस बार यूनियन बजट बिकॉज इट वुड बी रिलीज वेरी क्लोज टू योर एग्जाम. अभी यूनियन बजट आएगा जुलाई में. एंड द थर्ड एरिया इज स्कीम्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. लास्ट ईयर कुछ स्कीम्स पूछी थी, जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना. ठीक है, उसके बाद कोई कैपिटल मार्केट की रेगुलेशन सेबी वगैरह बनाता है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है, उसको भी आप ज़रूर कर लीजिएगा. तो ये कुछ बेसिक एरियाज हैं. पहले आरबीआई नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि अराउंड 25 मार्क्स का आएगा आउट ऑफ 50. इसमें स्टैटिक का वेटेज कम हो रहा है. ठीक है, तो स्टैटिक आएगा तो आई होप इफ यू वुड हैव रेड चैप्टर्स फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट यू वुड बी एबल टू हैंडल इट. बट इसमें ये जो करंट पार्ट है, इसमें जो हॉट इश्यूज होते हैं, करंट अफेयर्स में जो इश्यूज चल रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ओएनडीसी. आप ओएनडीसी सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा. देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन यूपीआई
यूपीआई में कुछ चेंजेस हुए थे, उस पे क्वेश्चन था. सो दिस ईयर ऑल्सो आई एक्सपेक्ट समथिंग रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स. देयर कैन बी 1 or 2 स्टैटिक क्वेश्चंस ऑल्सो, but those you would be able to handle if you have covered your objective part well. बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए जो ये मैं करंट अफेयर बेस्ड सीरीज बोल रहा हूँ, इसके लिए जैसे मैंने बोला ओएनडीसी यूपीआई आते हैं, तो आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू रीड एडिटोरियल्स विच इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू योर बिजी शेड्यूल. सो उसके लिए वी हैव अ पर्सपेक्टिव 360 डिग्री करंट अफेयर सीरीज वेयर वी कवर topics in the current affairs which are related to your syllabus and from which questions can be asked in your exam. तो इन वीडियोस में हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 p.m. every day there would be a lecture where sir would be discussing one editorial topic. He would give his views, challenges, solutions, everything on the topic, and he will give you a question to write which you need to write in the comment section of that YouTube video. And our team would evaluate it also. आप आंसर लिखेंगे तो आपको evaluate कर कर क्या गलत है क्या सही है और मार्क्स भी बताए जाएंगे. इसको आप सर्च कीजिए, सब पता लग जाएगा आपको. और फाइनेंस के लिए ये बुक्स अच्छी हैं. इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की बुक है, बट देयर आर सर्टन टॉपिक्स सच एज इन्फ्लेशन, यूनियन बजट, फंक्शंस ऑफ आरबीआई विच आर बेस्ट डन फ्रॉम दिस बुक. पुराना एडिशन है, नया एडिशन ले लीजिएगा. देन फॉर अदर टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस देयर इज नो स्टैंडर्ड बुक इन द मार्केट. One which can closely resembles the topics given in the syllabus would be Principles and Practices of Banking by Macmillan Education. बुक में टॉपिक्स मिल जाएंगे, सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, but the explanation is not good. So it might not be worth reading it. Rather, no, just choose those topics which are written here, subtopics which are written here, and search on Google. Similarly, this Bank Financial Management by Macmillan Education, टॉपिक्स सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, but कंटेंट अच्छा नहीं है. ये बुक मत पढ़िएगा. अच्छी बुक है बट आरबीआई के लिए रेलेवेंट नहीं है. करंट अफेयर्स की बात करें तो आई टोल्ड यू दैट द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द आरबीआई वेबसाइट बिकॉज आरबीआई नोटिफिकेशंस एग्जाम में आएंगी. देन लॉट ऑफ न्यूज रिलेटेड टू सेबी रेगुलेशंस और यूनियन बजट कैन बी आस्क्ड व्हिच कैन बी read from Live Mint, or even editorials shall be read from Live Mint if you want to read editorials. And these 5 reports are very very important. Union budget, annual report by RBI, reports on trends and progress in the banking industry by RBI, financial stability report by RBI, currency and finance report by RBI. ये सारी रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें से, और इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. सो दैट वाज अबाउट फाइनेंस. नाउ जीए, जर्नल अवेयरनेस, या इसको आप करंट अफेयर्स बोल लीजिए. This is an integrated part which will be useful in phase 1 and phase 2 also. We need not be differentiating that because अब काफ़ी overlap है. अब जीए में सबसे पहले जो कॉमन गलतियाँ, करंट अफेयर्स में जो कॉमन गलतियाँ होती हैं वो है कि लोग न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर पढ़ते हैं, which is very bulky affair. You can do that if you have time. Otherwise, I would say use some already compiled magazines. And do not try to underline in the newspapers or something. Make your notes if you're not able to retain. Or do not read any random news. Please be specific to what is related to your syllabus. अगर IT इंडस्ट्री की न्यूज़ आ रही है, NASSCOM ने ग्रोथ प्रोजेक्ट की IT इंडस्ट्री की, there is very less chance that it would be asked in your paper because this is not related to your syllabus. इंडियन गवर्नमेंट ने चाइल्ड एजुकेशन के लिए, गर्ल एजुकेशन के लिए कोई इनिशिएटिव लिया है. देयर इज अ वेरी हाई चांस इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम बिकॉज जेंडर इश्यूज इज वन ऑफ द टॉपिक्स इन योर सिलेबस. तो फाइनेंस और ईएसआई के टॉपिक्स को अच्छे से समझें. न्यूज़ को सिलेबस से रिलेट करके पढ़ें. न्यूज़ को न्यूज़पेपर से ना पढ़ें, कंपाइल्ड मैगजीन से पढ़ें. और ज़्यादा महीने मत पढ़ें. लोग एक एक साल के करंट अफेयर्स करने की कोशिश करते हैं जो कि फिजिबल ही नहीं है, ना ही ज़रूरत है. I would say 3 to 5 months of current affairs is more than sufficient, with this being a good limit, a good idea to do, this being the last resort. अगर 5 महीने के नहीं हो रहे हैं. So current affairs में करना क्या क्या है? So schemes आपको करनी है सबसे important. आपको इसी ऑर्डर में प्रायोरिटी लेनी है. Schemes in news. So बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होती हैं, रीलॉन्च होती हैं, अपडेट होती हैं, कंट्रोवर्सी में रहती हैं, and all these news are being shared on PIB. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट. इफ यू डोंट नो अबाउट इट, सर्च अबाउट इट. सो जितनी भी स्कीम्स न्यूज़ में है पीआईबी की रिलेटेड टू योर सिलेबस,
मतलब आपके सिलेबस में एनवायरनमेंट टॉपिक है तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्कीम है वो न्यूज़ में है, वो आपको करनी है। तो वट एवर स्कीम्स आर इन न्यूज़ ऑन PIB रिलेटेड टू योर सिलेबस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो उन स्कीम्स को जो PIB में एग्जाम से 3 से 5 महीने पहले न्यूज में है, आप उसको अच्छे से कर लेना। द ड्यूरेशन इज सेम जो मैंने पहले बताई, 3 से 5, 5 इज आइडियल, 3 इज द लास्ट रिजॉर्ट। RBI नोटिफिकेशंस जो RBI वेबसाइट से हैं, उन वो भी 3 से 5 महीने की आप कीजिए। दे आर वेरी टेक्निकल, डू नॉट ट्राई टू गेट टू मच इनटू देम, इट कैन टेक यू वीक टू अंडरस्टैंड इवन वन। RBI वालों को भी वो समझ नहीं आती है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछेंगे, फैक्ट समझ लो, नहीं समझ आ रहे हैं रट्टा लगा लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। ESI and finance current affairs. So there are a lot of topics, as I told you: gender issues, urbanization, migration, regional economic cooperation. So whatever current affairs related to ESI and finance syllabus, right, needs to be done, वो भी आपको करने पड़ेंगे। और reports, जितनी भी रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अगर मैं बोलूँ यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, OECD, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट ट्राई टू रीड द समरी ऑफ दीज रिपोर्ट्स विच आर बीइंग नो given as articles in the newspapers, rather than reading the whole report, which is not possible at this stage, and neither at any stage you should be doing that. बाकी नॉर्मल जी है जिसमें आपको टैग्स जो हैं डिफरेंट अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ऑबिचुरीज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, डिफेंस एक्सरसाइजेज, MOUs, एग्रीमेंट्स, जो भी यार ABCD जो GA आती है वो आपको करनी होगी। ये सिर्फ फेज 1 के लिए है, ये वाला 5th पॉइंट। जो बाकी पॉइंट्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1 एंड 2, ये आपको फेज 1 फेज 2 दोनों में पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है ये फेज 2 के लिए है, ये फेज 1 में भी भर भर के पूछी जाती है। 5-10 नंबर के स्कीम्स, 5-10 नंबर के RBI नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स, 30-40 नंबर का तो यही आएगा और बाकी 30 नंबर की GA आएगी। तो ये सारा आपको करना है। और इसके लिए सोर्सेज, PIB फॉर स्कीम्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। रिपोर्ट्स के लिए हिंदू बेस्ट है, बाकी GA के लिए भी हिंदू बेस्ट है, जितना हो जाए यहाँ से बढ़िया है। और लाइमिंट और RBI वेबसाइट, दिस इज फॉर RBI नोटिफिकेशन, RBI वेबसाइट, एंड लाइमिंट फॉर आई वुड से फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। और ESI की न्यूज़ आप हिंदू में से कवर कर सकते हैं। सो ये आपकी सोर्सेज हैं, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, दीज आर गुड सोर्सेज। बाकी यहाँ पे जो मैंने बताया है 1 अगस्त से 15 अगस्त ओनली डू फॉर अप्रैल एंड मई, ठीक है। सिर्फ अप्रैल और मई के करना, 15 दिन में 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। देन व्हेन वी मूव ऑन टू 15 अगस्त टू 30 अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त के यहाँ पे करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं क्वांट रीजनिंग में। आई वुड से सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स नॉट अबाउट कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ 25 मिनट में, क्या राइट क्वेश्चन उठा के, व्हेन देयर इज अ प्रेशर एंड एंग्जाइटी, कैन यू मैनेज दैट? दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। एग्जाम में बहुत काम आएगा। मॉक टेस्ट देने हैं 5 से ज़्यादा नहीं। मॉक टेस्ट में करना क्या है, आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे मॉक टेस्ट में, आपने 100 अटेम्प्ट किए, आपने बाकी 100 को नहीं देखना, उसको छोड़ दो। आप इस 100 को देखो कि आपने जो गलतियां की क्यों की, क्या आपने किसी क्वेश्चन में अननेसेसरली ज़्यादा टाइम लगा दिया, क्या आपने कोई क्वेश्चन में चीज़ें याद नहीं थी इसलिए नहीं कर पाए, अगर रिवीजन की होती तो कर लेते। तो ऐसी सारी चीज़ें इन 100 क्वेश्चंस में कीजिए। इन मॉक टेस्ट का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मैं बाकी 100 क्वेश्चन भी कर लूँ, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लूँ, नहीं। मॉक टेस्ट इज जस्ट टू वैल्यूएट योरसेल्फ। सो फर्स्ट फोकस ऑन दीज 100 क्वेश्चंस। हाँ, इन 200 जो बाकी 100 हैं उनमें से देख सकते हो कि यार कोई ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत ईजी था, मैंने पिक नहीं किया। और फाइनेंस आपका यहाँ पे सारा होगा नहीं 15 दिन में, शायद 3 हफ्ते लगेंगे, तो कुछ टाइम यहाँ निकाल लेना, नहीं हुआ तो भैया छोड़ देना। दिस यू कैन डू आफ्टर फेज 1। लास्ट वीक में कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं 2 बार, जितने भी किए उसको 2 बार रिवाइज कर लेना। 15 घंटे सिटिंग देनी पड़ेगी लास्ट वीक में, और 5 मॉक टेस्ट और दे लेना। और एग्जाम से 1 दिन पहले मॉक टेस्ट मत देना, ठीक है। बाकी बहुत सारा सिलेबस आपका उसके बाद भी बच जाएगा आफ्टर फेज 1। सबसे पहले तो ESI और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। 2 वीक हमें 9 सितंबर से ही स्टार्ट करके। डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट्स, जस्ट स्टार्ट। और फिर 25 सितंबर से 10 अक्टूबर हमें सितंबर के करंट अफेयर्स भी करने पड़ेंगे, बिकॉज फेज 2 में वो आएंगे, फेज 1 में नहीं आए थे।
हम दो मॉक टेस्ट भी देंगे, एंड द मॉक टेस्ट दैट वी शुड बी गिविंग द एंटायर सेट ऑफ 3 पेपर्स इन 1 डे। और हमें रिवीजन भी करनी होगी साथ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो हमारा अब मौत के साथ ही खत्म होगी। आप ये सोच लो, आपकी मौत कब होगी? सिलेक्शन लेके। तब तक आप एक भटकी हुई आत्मा हो। और 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर आई वुड रिवाइज थ्रू लॉट ऑफ एमसीक्यूज। आई वुड गिव 3 मॉक टेस्ट मे बी ऑन ऑल्टरनेट डेज, अगेन ऑल दी 3 पेपर्स इन 1 डे, बिकॉज एग्जाम में वैसे ही होने वाला है। रिवीजन करूंगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के साथ, और अक्टूबर के करंट अफेयर्स करूंगा मैं। कम से कम तो 15 अक्टूबर तक मुझे ये करंट अफेयर्स करने होंगे। सो दिस इज एन ओवरऑल प्लान। इसको बताना मेरे लिए बहुत आसान है, बट इसको एग्जीक्यूट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। इसलिए मैंने शुरू में बोला था, इट टेक्स लॉट ऑफ इंटेंट, पैशन, एफर्ट, सेक्रीफाइस फ्रॉम योर एंड टू बी एबल टू मैनेज दिस। ये तो एक बहुत ही हाई लेवल प्लान है। यहाँ ये कर लो, यहाँ ये कर लो, यहाँ ये कर लो। जब करने की बारी आएगी तो पसीने छूटेंगे, मौत आएगी, मन नहीं करेगा। वही जो उस चीज को मैनेज कर लेगा, ही विल बी एबल टू रेन इन एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल। सिलेक्शन होगा या नहीं वो फाइनल लेवल है, बट एक नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच जाओगे। एंड दीज आर अवर कोर्सेज फॉर आरबीआई ग्रेड बी। गोल्ड पैक है, सिल्वर पैक है, ठीक है। तो ये तो है ही, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। गोल्ड पैक फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू के लिए है, सिल्वर पैक ओनली फॉर फेज 2 है, बट फेज 1 का जीए मिलेगा। यू कैन चेक अ सैम्पल मटेरियल फॉर दीज कोर्सेज। बट इसके अलावा वी हैव आल्सो लॉन्च द क्रैश कोर्स फॉर 2020। तो ये क्रैश कोर्स में हमारी 5 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है, और ये आपके एंड तक चलेंगी, अराउंड 15 अक्टूबर तक। फेज 1 से पहले हम फेज 1 का सारा सिलेबस करेंगे और फेज 2 का एफएम करेंगे, और फेज 1 के बाद हम ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे। तो ये क्रैश कोर्स का आपको हमारी वेबसाइट पे डिटेल मिल जाएंगी। यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ। पूरा शेड्यूल उसमें डाला हुआ है कि आपको ये क्रैश कोर्स में एनरोल करना है नहीं। यहाँ पे चीज़ें फास्ट पेस चलेंगी, बट इट वुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आपको डर है कि डेली क्या करना है, कितना पढ़ना है, डाउट्स कैसे रिजॉल्व होंगे, क्या प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें इस क्रैश कोर्स में टेकन केयर की गई हैं, जो आपको बिल्कुल एंड टू एंड प्रिपेयर कराएंगी, पर थोड़ा सेलेक्टिवली येट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो बहुत सारे क्लासेस हैं इसमें, कम से कम मैं बोलूँ तो मतलब आपकी 100+ लाइव क्लास होगी। फेज 1 से पहले ही बहुत मतलब 60 70 80 लाइव क्लास हो जाएगी, उससे भी ज़्यादा शायद। और फेज 2 के बाद, फेज 1 के बाद हम और क्लासेस करेंगे, जब हम पूरा फेज 2 दोबारा से करेंगे, इवन एफएम जो हम फेज 1 से पहले कर चुके होंगे। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, हैव दैट पैशन, then only prepare, otherwise just leave it for somebody else to take your seat. Bye bye.